Hi everyone. I'm sure all of you are busy preparing for the unveiling of the most historic tax reform India has witnessed since independence, the goods and services tax. Over the last few days, we have received several queries regarding input tax credit balance and stock balance that will be outstanding as on 30th June 2017. For that reason, we decided to upload a tutorial explaining the form Tran 1 and 2 that is to be filed for the outstanding credit to be carried forward within 90 days of 1st July 2017. So without further ado, let us get started. For the benefit of our audience, I have tried to make this video in English as well as in Hindi so that हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए. On your screens right now you can see a format of the form GST Tran 1 which has been released by the Central Board of Excise and Customs. इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो कि एक SSC को फिल करनी है, तो हम एक एक फील्ड के बारे में बात करेंगे. Field number 1, GSTIN. This is the number that will be allotted to you once you have completed the registration process. Legal name of the registered person. This is the legal name जो आप fill करेंगे अपनी registration form के अंदर. Field number 3, trade name if any. अगर आप अपना business अपने legal name के अलावा किसी trade name के अंडर भी चलाते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है. Field number 4, whether all the returns required under existing law for the period of 6 months immediately preceding the appointed date have been furnished. Yes or no? इसका जवाब आपको yes या no में देना है. मैं एक बारी आपको फिर से बताना चाहूँगा कि appointed date 1 जुलाई 2017 है. Moving on to more critical fields of Form GST Tran 1. Field number 5, amount of tax credit carried forward in the return filed under existing laws. Subpart A, amount of CENVAT credit carried forward to electronic credit ledger as central tax. As per section 140 of Central GST Act, there are certain transitional provisions that have been mentioned for you to carry forward your credit balances. As on 30th June 2017, आपका जो भी स्टॉक का बैलेंस है और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सेनवैट क्रेडिट बैलेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको एक रिटर्न फाइल करनी होगी जो कि आखिर रिटर्न मानी जाएगी सेंट्रल एक्साइज लॉ के अंदर या सर्विस टैक्स लॉ के अंदर. उस रिटर्न में दी गई इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स आपको इस फॉलोइंग टेबल में फिल करनी है. कॉलम नंबर 1, सीरियल नंबर. कॉलम नंबर 2, रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स. Column number 3, tax period to which the last return filed under existing law pertains, जो कि most of the cases में 1st June 2017 to 30th June 2017 होगा. Column number 4, date of filing of the return specified in column number 3. Column number 5, balance CENVAT credit carried forward in the said last return. जो भी आपने CENVAT क्रेडिट बैलेंस अपनी लास्ट रिटर्न में शो किया है उसका अमाउंट आप कॉलम नंबर 5 में लिखेंगे. कॉलम नंबर 6, CENVAT क्रेडिट एडमिसिबल एज ITC ऑफ सेंट्रल टैक्स इन अकॉर्डेंस विद ट्रांजिशनल प्रोविजंस. सेक्शन 140 के तहत कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिस केस में आप CENVAT क्रेडिट बैलेंस अपना नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने इनपुट्स को एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए यूज़ करने वाले हैं GST के अंडर, या आप कंपोजिशन डीलर बन रहे हैं GST के अंदर एंड सो ऑन, तो आपको क्रेडिट बैलेंस लेना अलाउड नहीं है. तो उसके अलावा जो एडमिसिबल ITC है जो आप सेंट्रल टैक्स के में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसका अमाउंट आप कॉलम नंबर 6 में भरेंगे. मूविंग ऑन, सब पार्ट बी, डिटेल्स ऑफ स्टैट्यूटरी फॉर्म्स रिसीव्ड फॉर विच क्रेडिट इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड. पीरियड 1st April 2015 टू 30th June 2017. इस टेबल के अंदर आपने जो भी क्लियरेंसेस या सेल किया है 1st April 2015 टू 30th June 2017 स्टैट्यूटरी फॉर्म्स के अगेंस्ट, आपने C फॉर्म के अगेंस्ट कम रेट में सेल किया है या आपने F फॉर्म के तहत अपना स्टॉक ट्रांसफ़र किया है, तो उन फॉर्म्स को आप इकट्ठा कीजिए और उनकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी. इसका लॉजिक ये है कि इन फॉर्म्स के अगेंस्ट आपने कम रेट पे टैक्स पे किया है या कोई टैक्स पे नहीं किया. अगर ये फॉर्म आपको नहीं मिलते तो एग्जिस्टिंग लॉज के अंडर भी आपको वैट रेट लग जाता है. तो अगर आप ये फॉर्म्स फर्निश नहीं कर पाते तो जो डिफरेंस
टैक्स बनेगा वैट रेट और CST रेट जो रिड्यूस्ड रेट होता है उसके अंदर, तो वो आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी और उतना क्रेडिट आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसकी डिटेल पार्ट सी के अंडर है, जहाँ की आपको पेंडिंग फॉर्म्स की डिटेल देनी है और फिर कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 में आपको डिफरेंस टैक्स पेबल या ITC जो रिवर्स करना है उनकी डिटेल देनी है। सब पार्ट सी, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट फॉरवर्ड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज स्टेट UT टैक्स फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन ऑन द सेम पैन एंड इन द सेम स्टेट। इसके अंदर आपको कॉलम नंबर 2 में अपना वैट का बैलेंस ITC दिखाना है। कॉलम नंबर 3 में जहाँ पे C फॉर्म जो आपके पेंडिंग रह जाते हैं उनकी डिटेल देनी है। कॉलम नंबर 4 में जो उस पर वैट रेट लगना चाहिए था और जो आपने पे किया है CST रेट, उसका डिफरेंस जो लायबिलिटी में कन्वर्ट होगा उसकी डिटेल आपको देनी है। इसी तरह F फॉर्म और H फॉर्म के करस्पॉन्डिंग जो भी लायबिलिटी क्रिएट होगी उनकी डिटेल्स भी आपको इस टेबल में भरनी है। Moving on to field number 6, details of capital goods for which unavailed credit has not been carried forward under existing law, section 140 subsection 2। करंट सेंट्रल एक्साइज लॉ के अंदर आपको कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट एक साथ पूरा नहीं मिलता था। यू आर सपोज टू स्प्रेड इट ओवर 2 periods इन द प्रोपोर्शन 50% ईच। अकॉर्डिंगली जो भी आपका सेनवैट क्रेडिट अभी आपने अवेल नहीं किया है कैपिटल गुड्स में, उसको आप GST रजीम के अंडर कैरी फॉरवर्ड करके यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर, जिस भी इनवॉइस के अगेंस्ट आपने कैपिटल गुड परचेज किया है उसकी डिटेल। कॉलम नंबर 3 इनवॉइस डॉक्यूमेंट डेट, इनवॉइस के ऊपर जो भी डेट है उसको आप कॉलम नंबर 3 में लिखेंगे। कॉलम नंबर 4 सप्लायर्स रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर एग्जिस्टिंग लॉ बीइंग सेंट्रल एक्साइज लॉ। कॉलम नंबर 5 रेसिपिएंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। कॉलम नंबर 6 वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड, जो भी उसकी वैल्यू थी जिसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है, जो कि आप कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 में लिखेंगे ड्यूटी का पोर्शन। कॉलम नंबर 9 टोटल एलिजिबल सेनवैट क्रेडिट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, सेंट्रल एक्साइज में जो भी क्रेडिट एलिजिबल था उसको आप कॉलम नंबर 9 में लिखेंगे। कॉलम नंबर 10 टोटल सेनवैट क्रेडिट अवेल्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, उस एलिजिबल क्रेडिट का पार्ट जो कि आपने ऑलरेडी सेंट्रल एक्साइज में अवेल कर लिया है वो। कॉलम नंबर 11 जो भी रिमेनिंग पोर्शन रह गया है अनअवेल्ड, जो कि आप GST रजीम के अंडर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस इन सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, वो आप कॉलम नंबर 11 में लिखेंगे। सब पार्ट बी अमाउंट ऑफ अनअवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज स्टेट/UT टैक्स। सिमिलर टू सब पार्ट ए जहाँ की हमने अनअवेल्ड सेनवैट क्रेडिट की बात करी है, उसी तरीके से कैपिटल गुड्स के ऊपर कुछ स्टेट टैक्सेस होते थे जिनको अवेल करने में रिस्ट्रिक्शंस होती थी। तो एज ऑन 30 जून 2017 स्टेट टैक्सेस जो आपके कैपिटल गुड्स पे अनअवेल्ड हैं उसकी डिटेल्स आप सब पार्ट बी में दे सकते हैं और उसको GST रजीम में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कॉलम्स एकदम सेम हैं जो सब पार्ट ए में हमने एक्सप्लेन किए थे, बट इसमें डिफरेंस ये है एक्साइज ड्यूटी के अलावा यहाँ पे वैट और एंट्री टैक्स की बात की गई है। कमिंग नाउ टू द मोस्ट क्रिटिकल फील्ड ऑफ GST फॉर्म ट्रान 1, फील्ड नंबर 7 डिटेल्स ऑफ द इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 3, 140 subsection 4 and 140 subsection 6. According to these subsections of section 140, if you were an exempted person or a composite dealer under the existing laws and moving to the GST regime, you are opting to become a regular taxable person, you have the option of carrying forward the credit on the inputs in your stock or inputs utilized in semi-finished goods and finished goods in your stock as on 30th June 2017. कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी इनपुट्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स पड़े हैं और उनमें कुछ इनपुट्स यूज़ किए गए हैं जिनका क्रेडिट आपने अवेल नहीं किया, ऑफ कोर्स आपने अवेल नहीं किया क्योंकि आप एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कर रहे थे तो आपको अलाउड ही नहीं था। तो यदि आपके वो सप्लाईज आगे जाके टैक्सेबल होने वाले हैं तो 30 जून के स्टॉक पे इनपुट्स का क्रेडिट आप GST रजीम में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सब पार्ट ए amount of duties and taxes on inputs claimed as credit excluding the credit claimed under table 5A and 7A। 7A यहाँ पे कुछ एरर है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। Details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished goods or finished goods held in stock।
यहाँ पे आपको 6 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें आपको कॉलम नंबर 2 में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, HSN कोड्स डालने हैं इनपुट्स के या इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स में। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। 7A वेयर ड्यूटी पेड इनवॉइसेस और एनी अदर डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल, जहाँ पे आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल हैं जो कि टैक्सेबल इनवॉइस हैं या एक्साइजेबल इनवॉइस हैं, जहाँ पे एक्साइज का पोर्शन क्लियरली मेंशन्ड है, तो उसकी डिटेल आप 7A में डालेंगे, क्योंकि इसका क्रेडिट आपको एज इट इज़ 30 जून के बाद 1 जुलाई को ट्रांसफ़र हो जाएगा। 7B थोड़ा और ट्रिकी है, बिकॉज 7B इज़ वेयर ड्यूटी पेड इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल, विच मीन्स दैट आपके पास इनवॉइस तो है बट उसमें एक्साइज ड्यूटी या टैक्स कंपोनेंट क्लियरली मेंशन नहीं है। Before moving any further, let me clarify the applicability of Field 7 once again. 7A is applicable to all manufacturers, service providers or traders, whether registered or not in the current tax regime, whether providing exempted supplies or not. Even if they are availing the benefit of composition scheme in the current tax regime, they can opt for this benefit provided that they get registered under GST and plan to provide taxable supplies in the future. 7B की कहानी थोड़ी different है, because 7B is applicable to only traders and not to any manufacturer or service provider. Coming back to our discussion of 7B. Credit in terms of Rule 1, Sub-Rule 4. Rule 1, Sub-Rule 4 के तहत आपको कुछ proportion का credit मिलेगा. This is dependent on the CGST rate on the input that you are claiming credit for. अगर आपके इनपुट का CGST रेट 9 या 9% से ज़्यादा है तो आपको 60% ऑफ CGST रेट क्रेडिट मिलेगा। अगर उससे कम है तो आपको 40% मिलेगा। IGST के केस में ये प्रोपोर्शन 30 और 20% हो जाता है। जिस तरह सब पार्ट ए में हमने सेंट्रल टैक्सेस की बात करी थी, उसी तरह सब पार्ट बी और सब पार्ट सी में हम स्टेट टैक्सेस की बात करेंगे। सब पार्ट बी के अंडर हम उन इनपुट्स और इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स की डिटेल डालेंगे जिनके अगेंस्ट हमारे पास वैटेबल इनवॉइस अवेलेबल हैं। सब पार्ट सी में हम उनकी डिटेल्स देंगे जहाँ पे हमें वैटेबल इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं हैं। फील्ड नंबर 7 में क्रेडिट अवेल करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। सम ऑफ द कंडीशंस आर एज फॉलोज कि जो इनवॉइसेस हैं वो 12 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, आपके पास इनवॉइसेस एक्चुअल में होने चाहिए, etc. Moving on to field number 8. Details of transfer of SENVAT credit for registered person having centralized registration under existing law. Section 140 subsection 8. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट सेंट्रल एक्साइज लॉ और सर्विस टैक्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होता है। ऐसा ऑप्शन जीएसटी रजीम में अवेलेबल नहीं है। आपको जीएसटी रजीम के अंडर हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिशन प्रोविजंस में सेक्शन 140 सबसेक्शन 8 को डाला गया है ताकि सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन के पास जो भी सेनवैट क्रेडिट बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो जीएसटी के अंडर सेपरेटली रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जा सके। टेबल में कॉलम नंबर 1 में आप सीरियल नंबर डालेंगे, कॉलम नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर एग्जिस्टिंग लॉ जो भी सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कॉलम नंबर 3 और 4 में आप लास्ट रिटर्न जो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन ने सबमिट करी है उसकी डिटेल्स देंगे, कॉलम नंबर 5 में बैलेंस एलिजिबल सेनवैट क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड इन द सेड लास्ट रिटर्न जो भी बैलेंस आपने कैरी फॉरवर्ड किया है लास्ट रिटर्न में, कॉलम नंबर 6 में आप GSTIN देंगे रिसीवर्स का जो कि सेम पैन पे रजिस्टर्ड हैं और जिनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना क्रेडिट बैलेंस, कॉलम नंबर 7 और 8 में डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दी जाएंगी जो कि आपने जनरेट किया है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस, कॉलम नंबर 9 में फाइनली आपने जितना भी सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र किया है उसका अमाउंट डाला जाएगा। फील्ड नंबर 9, डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर एंड हेल्ड इन स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 141। यदि 30 जून 2017 को आपका कोई भी स्टॉक जॉब वर्कर के पास पड़ा हुआ है जो कि आपने जॉब वर्क के लिए भेजा था, तो जब वो स्टॉक वापस आएगा उस पर कोई टैक्स ना लगे तो उसकी डिटेल आपको इस फील्ड के अंदर देनी है। सेक्शन 141 कहता है कि जॉब वर्कर के पास रखा हुआ स्टॉक यदि 6 महीने में वापस आ जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ GST विच इज़ 1 जुलाई 2017 तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फील्ड नंबर 10,
Details of goods held in stock as agent on behalf of the principal under section 142 subsection 14 of the SGST Act. यदि आपके कुछ गुड्स या कैपिटल गुड्स का स्टॉक एजेंट के पास है तो उसका क्रेडिट का बेनिफिट एजेंट को दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपने एज प्रिंसिपल उसका क्रेडिट नहीं लिया है। सेकेंडली, एजेंट के पास इनवॉइसेस हैं और इनवॉइसेस 12 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। 11. Details of credit availed in terms of section 142 subsection 11 clause C. यदि ऐसे कुछ गुड्स हैं जिन पे आपने वैट या सर्विस टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है और उसको अपॉइंटेड डे के बाद सप्लाई किया जा रहा है तो आपको वैट या सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल सकता है। ऐसी डिटेल्स आपको फील्ड 11 में देनी है। फील्ड नंबर 12. Details of goods sent on approval basis 6 months prior to the appointed day, section 142 subsection 12. यदि कुछ गुड्स आपने अपने कस्टमर्स को अप्रूवल बेसिस के लिए भेजे हुए हैं जो कि 30 जून से 6 महीने पुराने नहीं हैं, मोर ओवर ये गुड्स आपको विद इन 6 महीने वापस आ जाते हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो इनके सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे गुड्स की डिटेल आपको फील्ड नंबर 12 में देनी है। ऑल दीज फील्ड्स आर फॉलोड बाय अ वेरिफिकेशन बाय ऑथराइज सिग्नेटरी, जहाँ पे आप अपना सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और प्लेस और डेट डालेंगे। This was all about GST Tran 1. Moving on to Form GST Tran 2. जैसे कि आपको याद होगा, हमने फॉर्म GST Tran 1 के फील्ड 7 में स्टॉक आउटस्टैंडिंग एज ऑन 30 जून की डिटेल्स की बात की थी। पार्ट 7 कैपिटल ए में ऐसे स्टॉक की इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी थी जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ड्यूटी पेड इनवॉइसेस अवेलेबल हैं, और पार्ट 7 कैपिटल बी में वो स्टॉक जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ड्यूटी पेड इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं हैं। I had also told you that Part 7A का credit will get carried forward on the basis of Tran 1 and the last return filed under the earlier tax regime. However, for the credit against stock covered under Part 7 capital B, we are supposed to furnish Tran 2 as and when the stock covered by Part 7 capital B of Tran 1 is sold. Tran 2 के कुछ important features हैं which are as follows. Tran 2 is applicable only for 6 tax periods or months from 1st of July 2017. Tran 2 is applicable only to traders furnishing information under Part 7 capital B of Tran 1. Moving to the fields in Form GST Tran 2. Field 1 and 2 are fairly easy. हम सीधा Field 3 की बात करते हैं। Tax period. 1 जुलाई के बाद आप जिस भी मंथ के लिए Tran 2 भर रहे हैं उसकी डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे। Field 4 and 5, although similar, are the most critical fields of Tran 2. यहाँ आपको opening stock, supply made in a particular month और closing stock की details furnish करनी है। To understand field 4 and 5 better, let us take an example. Imagine I'm a trader जिसने अपने pens के stock की details Part 7 capital B of Tran 1 में furnish करी हैं। मेरा first tax period है month of July ending 31st July 2017। इस मंथ के दौरान मैंने अपने पेन के स्टॉक में से कुछ पेन सेल भी किए हैं। आफ्टर क्लियरिंग रेलेवेंट GST लायबिलिटी ऑन द सप्लाई ऑफ पेन्स ड्यूरिंग मंथ ऑफ जुलाई, आई विल अपलोड Tran 2. In my GST Tran 2, I will fill the HSN code, quantity and value of opening stock of pens as on 1st July 2017. This stock as on 1st July 2017 is nothing but the closing stock as on 30th June. In column 4, 5, 6 and 7, I will fill the details of pens supplied from the stock during the month of July with the respective taxes paid on the same. In column 9, I will declare closing balance of my pens, which is nothing but opening minus the supply made during the month of July. Only after I have paid the relevant tax on the supply of the respective stock, I will be able to get the proportionate credit in my electronic credit ledger on the basis of Tran 2. After all these details have been filled in, the authorized signatory is supposed to verify the form and sign it before it is uploaded on the GST portal. This was all about filing of GST Tran 1 and Tran 2. I sincerely hope that you will find this tutorial beneficial. If you have any further questions, kindly write to us at rvadva&associates@gmail.com. Thank you and have a nice day.